Fine. Developments leading to the Bohr's model of atom. We already have discussed about. We already have started our discussion about this. We have discussed about the dual character of electromagnetic radiation. Okay. ये हमें डिस्कस करना है. एक्चुअल में दो डेवलपमेंट्स हैं. पहला जो डुअल कैरेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ऑब्जर्व हुआ, दैट दे वर हैविंग द wave nature as well as the particle nature, and second the experimental results regarding the atomic spectra of the hydrogen atom, mainly hydrogen atom. Okay, so for various energy levels it was there. We have discussed about the wave nature of the electromagnetic radiation. We have discussed in the previous lecture about the electromagnetic radiation, that there are electric field and magnetic field perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation of waves. And fine, a part of this, I have told you about the spectrum that was having, all gamma rays, X-rays, ultraviolet, visible, infrared, microwave, radio wave, long waves, etc. In the decreasing and increasing order of their frequencies, you can go through this figure again and again and try to make a mind map so that you can easily remember all these things when needed. Very easy questions are there regarding the wave velocity or frequency or wavelength. Out of this formula, any two things will be known to you, and you will have to search the third one. Easily it can be done. Very simple calculations are there, so you people must go through all these examples which are present in the. See, I'm telling you again and again that the minimum what you have to do is the NCERT exemplar questions, NCERT in text questions, and NCERT exercise questions. That is it. Minimum. Okay. Maximum, your choice. No limit is there. Yeah, most of the time students are asking, sir, कम से कम कितना पढ़ लें कि काम हो जाए? तो you must have to study कम से कम इतना. Okay. या पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हमें बात करनी थी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी की बात करनी थी, और मैंने आपको बताया था कि वेव नेचर से कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी. क्या क्या नहीं एक्सप्लेन हो पा रहा था? Wave nature was not able to explain the nature of emission of radiation from the hot body. Hot body radiation, black body radiation को explain नहीं कर पा रहे थे. क्या wave nature? Ejection of electrons from metal surface when radiation strikes, photoelectric effect नहीं explain किया गया था. Variation of heat capacity of the solids नहीं explain कर पा रहे थे, और line spectra of the atoms with spatial reference to hydrogen was not explained with the previous available models. See, first of all, we are going to have a brief idea about the black body radiation. Note this thing that when first concrete explanation of the black body radiation was given by Max Planck in 1900. This phenomena is given below. How it is? When solids are heated, आप किसी भी solid को heat कर दीजिए. When solids are heated, they emit radiations. जब ज्यादा हीट हो जाएंगे तो वो कुछ रेडिएशन इमिट करने लगेंगे, कुछ लाइट इमिट करने लगेंगे, कुछ स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी वाले वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करने लगेंगे over a wide range of wavelengths. For example, when iron rod is heated in a furnace, it first turns dull red, then progressively becomes more and more red as the temperature increases. As this is heated further, the radiation emission becomes white, okay, and then becomes blue as well as the temperature gets high. Dull red, dark red, very dark red, then white, then blue. Okay, जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करते जाएंगे. इन टर्म्स ऑफ दिस, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हो क्या रहा है जब अलग अलग रेडिएशन आपको मिल रहा है. In terms of frequency, it means that the radiation emitted goes from a lower frequency to a
higher frequency as the temperature increases. Yeah, temperature means more and more heat. More and more heat means more and more energy you are providing. और जब आप ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो रेडिएशन भी ज़्यादा एनर्जी का इमिट होगा. ओके, मैंने आपको पहले बताया था E इज इक्वल टू एच न्यू. थोड़ा सा पार्टिकल नेचर को ब्रेन में रखिए. मैंने आपको बताया जब वेव नेचर है तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो एक कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी है. बट जब हम लाइट का पार्टिकल नेचर कंसीडर करेंगे तो लाइट रेज नहीं है, लाइट वेव नहीं है, लाइट छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में आ रही है. एंड दीज पैकेट्स डू नॉट हैव एनी मास. इन पैकेट्स का कोई मास नहीं है. दीज पैकेट्स, दीज एनर्जी पैकेट्स आर कॉल्ड photons. Photons. Yeah, and this is the energy of one photon. जो भी उसका फ्रीक्वेंसी है आप उसको प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी, यू विल गेट द एनर्जी ऑफ वन फोटॉन. ओके, सो लेट्स सी. जैसे जैसे आप ज्यादा हीट करोगे, जितना ज्यादा हीट कर दोगे उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन इमिट होने लगेगा. द रेड कलर lies in the lower frequency region, you people know very well, and the blue belongs to a very high frequency region. The ideal body, देखिए ideal body क्या है, which emits and absorbs all frequencies. ऐसा बहुत कम होता है कि सारे फ्रीक्वेंसी absorb भी कर रहे हो और सारे फ्रीक्वेंसी emit भी कर रहे हो. ओके, बट अगर ऐसा कोई बॉडी है then that body is called black body. ओके, परफेक्ट ब्लैक. परफेक्ट ब्लैक का मतलब मैंने आपको पहले भी एक बार कलर का थीसिस दिया था. ये मास्क आपको रेड कलर का दिख रहा है. व्हाई? बिकॉज ये बाकी सारी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वही आपको दिखेगा. मेरा टी शर्ट आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, नॉट परफेक्ट ब्लैक, ग्रे टाइप का. तो क्योंकि ये ग्रे कलर का वेवलेंथ इमिट वापस कर रहा है, बाकी सारा एब्जॉर्ब कर रहा है. पर तो इस पर व्हाइट लाइट रही है ना. ये फिनोमेना हम लोग खूब क्लास 10th में खेल चुके हैं. So now what? If a body, a perfect black body, what is a perfect black body? Which absorbs all the radiation. अगर सारा का सारा लाइट एब्जॉर्ब हो जाए, कुछ भी वापस नहीं आ रहा है, it means that is a black body. और अगर वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर रहा है तो ज्यादा हीट करने पर वो सारा का सारा इमिट भी कर सकता है. ओके, और उस कंडीशन में वो व्हाइट दिखने लगेगा. राइट? द रेडिएशन इमिटेड बाय सच अ बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन. तो अगर कोई आइडियल बॉडी है जो सारा का सारा रेडिएशन, सारी फ्रीक्वेंसी, सारी वेवलेंथ अब्सॉर्ब कर सकता है एज वेल एज इमिट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी. और उस बॉडी के द्वारा रिलीज किया गया रेडिएशन इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन. क्लियर? द एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन of the emitted radiation, intensity versus frequency curve of the radiation from a black body depends on only its temperature. Okay, at a given temperature, intensity of radiation emitted increases with decreasing wavelength. Wavelength decrease होगा तो frequency increase कर जाएगा, energy increase कर जाएगा. Reaches a maximum value at a given wavelength and then starts decreasing with a further decrease of wavelength. Yeah, these things are clear to all of you. See this figure. T2 temperature is greater, right, than T1. So at higher temperature you will get higher intensity. The above experimental results cannot be explained satisfactorily on the basis of wave theory. Wave theory के basis पे explain ही नहीं किया जा सकता है. कोई सारी की सारी wave receive करके सारा का सारा emit कैसे कर सकता है? Okay? हमारे पास अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं. इस एनर्जी लेवल से अगर सेकेंड एनर्जी लेवल पे जाएगा तो वापस आते समय ये उसी एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर एनर्जी इमिट करेगा. राइट? इलेक्ट्रॉन. और इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की वजह से ही हमें रेडिएशन देखने को मिलता है. The above experimental results cannot be explained satisfactorily on the basis of the wave theory of the radiation.
Planck suggested that atoms and molecules could emit or absorb energy only in discrete quantities. Discrete मतलब जो fixed quantities हैं, that cannot be further divided. Discrete का मतलब मैंने बोला ना, मेरी क्लास में या तो 5 स्टूडेंट होंगे या 6 होंगे, 5.5 नहीं हो सकते, राइट? बिकॉज 1 स्टूडेंट इज अ डिस्क्रीट यूनिट, मैं उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, क्लियर? सो विच द यूनिट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, अगर किसी बॉडी के ऊपर आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा या फिर n इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, राइट? n may be any number but it cannot be any whole number. n is any whole number, it cannot be a fractional number. आप 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं ला सकते, आप 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज किसी बॉडी पे जनरेट नहीं कर सकते, राइट? सो क्वांटाइज्ड होने का मतलब है किसी चीज का वैल्यू डिस्क्रीट हो जाना, डिस्क्रीट क्वांटिटीज हो जाना, एंड नॉट इन अ कॉन्टिन्यूअस मैनर. A belief popular at that time. उस समय क्या था? उस समय लोगों को लगता था कि एनर्जी जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो है, जबकि अब हमें क्या पता है कि ये छोटे छोटे पैकेट्स में आ रहा है. दिस इज नॉट मींस कॉन्टिन्यूअस, राइट? Planck gave the name quantum to the small quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation. Smallest, जो सबसे छोटा है उसको बोला क्वांटम, ओके? और क्वांटम का प्लूरल होता है क्वांटा, ओके? क्वांटम को आप फोटोन बोल सकते हैं, सिंपल. वन एनर्जी मतलब जो स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी वाला यानी मैक्सिमम वेवलेंथ वाला फोटोन होगा उसका एनर्जी आपने क्वांटाइज कर दिया. To the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed from any electromagnetic radiation, the energy E of the quantum radiation is proportional. जो एनर्जी है मैं पहले ही बता चुका हूँ, किसी भी क्वांटम रेडिएशन का, किसी भी क्वांटम का यानी किसी भी फोटोन का, that is proportional to the frequency. E is equal to, E is proportional to what? E is proportional to nu. What is nu here? Nu is frequency. E is energy of one photon. So remove the sign of proportionality and use a constant. What that constant is known as? That constant is called Planck's constant. E is equal to h nu. What is the value of this Planck's constant? This is 6.266, sorry, 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल. आपकी बुक में दिया होगा जूल सेकेंड, राइट? जूल सेकेंड ही है, मतलब मैं आपकी बुक में यूनिट दिया होगा 6.626. प्लीज लर्न इट, ओके? दिस इज द यूनिट विच यू हैव टू यूज मेनी टाइम्स. ये एक वैल्यू है जो आपको कई बार यूज करनी पड़ सकती है. 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. Things are clear to all of you? Fine. Now let's discuss about the photoelectric effect. What is photoelectric effect? See students, suppose I am having a metal surface, okay? And radiation is falling on it. What I'll observe, emission of electrons from this surface. Got it? मतलब जब किसी मेटल सरफेस को इरेडिएट किया जाता है तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाला, ओके? मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी रेडिएशन आप डाल दीजिए और एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने लगेगा. नो, ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस पे कुछ पर्टिकुलर एनर्जी से बाइंडेड है. यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, बट इन इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस पे कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट किया गया है, बांध रखा गया है. दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड work function. The force of attraction by which electrons are bounded to the metal surface, okay? Bound to the metal surface. That is work function.
Clear? So this is the minimum amount of energy which is required to remove an electron from the metal surface. ये इतना एनर्जी तो आपको चाहिए ही चाहिए जस्ट इलेक्ट्रॉन को यहां से, क्योंकि ये क्या करेगा, एक फोटोन, हाँ एक बात ध्यान रखेंगे, एक स्टूडेंट को, जैसे कई बार ऐसा होता है, मतलब take the example of 15th August, okay, and you are in a school, so you will get just one packet of sweets, got it, one student one packet. In the very similar way, one photon per one electron, एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक फोटोन रिसीव कर सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा रिसीव कर लेगा। क्लियर? अगर ये वेव होता, बात को समझिएगा ध्यान से, ये मेटल सरफेस है, मैंने पहले बहुत कम एनर्जी का रेडिएशन इमिट कराया, रेडिएशन डाला इसके ऊपर, मैंने देखा इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं हो रहा है, फिर मैंने रेडिएशन बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, रेडिएशन बढ़ाने का मतलब रेडिएशन का एनर्जी बढ़ाया। एनर्जी कैसे बढ़ाया? बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। तो जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूं, वो क्या रहा है कि एक लिमिट आया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जस्ट इमिट होकर के सरफेस पे आ गया। क्यों? मुझे कैसे पता चला सरफेस पे रिलीज होकर के आ गया? क्योंकि अपोजिट साइड में मैंने एक स्ट्रॉन्ग वोल्टेज पॉजिटिव चार्ज का लगा रखा था, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर के पहुंच गया। जैसे ही वहां पर पहला इलेक्ट्रॉन पहुंचा, मैं मान लूंगा कि भाई साहब ये जो है इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये इसका वर्क फंक्शन है, दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट, सॉरी, फ्रॉम द मेटल सरफेस। ओके, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने में मेटल सरफेस से जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो हो गया आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज द अमाउंट ऑफ, is the force by which the electron was bound to that metal surface. So threshold energy is the minimum amount of energy required to remove the electron, just remove the electron, okay, from the metal surface. आप इससे ज्यादा दोगे तो जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। बची हुई एनर्जी का क्या करेगा? फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस मेटल सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी 10 जूल है, दिस इज जस्ट अ वाइल्ड एग्जांपल यू कैन से, राइट। 10 जूल किसी का होता नहीं है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए। सो मान लीजिए इसका वर्क फंक्शन 10 जूल है, मतलब ये 10 जूल फोर्स से अट्रैक्टेड है मेटल सरफेस पे, तो इसको जो फोटोन चाहिए वो कम से कम 10 जूल एनर्जी वाला होगा, तो ये रिलीज होकर के जस्ट सरफेस पे आ जाएगा। और अगर 15 जूल वाला हुआ तो 10 जूल तो सरफेस पे आने पे लग गया, बाकी 5 जूल को लेकर के ये एमिट कर जाएगा अपनी काइनेटिक एनर्जी बना करके। आ रही है बात समझ में? सो वॉट एवर एनर्जी इज एक्स्ट्रा गिवन, फॉर एग्जाम्पल आपने उससे ज्यादा रेडिएशन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के करस्पॉन्डिंग आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा का रेडिएशन अगर आपने दिया हुआ है तो वहां पर एनर्जी ज्यादा है, और ज्यादा एनर्जी के केस में इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग एनर्जी को अपनी इलेक्ट्रॉनिक, अपनी काइनेटिक एनर्जी बना करके सरफेस से रन कर जाएगा, मूव कर जाएगा। क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हालांकि ये वेव नेचर से कैसे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है? अगर वेव नेचर से सेटिस्फाई हो रहा होता तो मैं जब लोअर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन दे रहा था तब भी इलेक्ट्रॉन इमिट होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि तब एनर्जी पैकेट में नहीं आ रहा था, तब एनर्जी कॉन्टिन्यूअस फैशन में आ रहा था, तो जितना भी थ्रेशोल्ड एनर्जी था उतना लेने के बाद वो मूव कर जाता, राइट। मगर ऐसा नहीं हुआ, एनर्जी आ रहा है पैकेट में, उसने एक फोटोन के बराबर एनर्जी रिसीव किया और मूव करा। आ रही है बात समझ में? दिस satisfies that light is having particle nature. आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा है। दिस इज ऑल सेटअप फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो चीजें मैंने आपको बताई थी बिल्कुल वैसा ही। ओके, मेटल सरफेस पे रेडिएशन आया और इलेक्ट्रॉन एमिट कर गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे ऊपर के केस में।
threshold energy is represented by nu naught. Okay, nu naught, highlight this. See students, this is equation for the photoelectric effect. What is this? मान लीजिए आपने न्यू फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन डाला, तो उसके 1 फोटोन का एनर्जी हो जाएगा एच न्यू. हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट था, और न्यू इज, कंडीशन ये है कि न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट. अगर न्यू नॉट से कम हुआ, इन केस न्यू नॉट, इफ न्यू नॉट इज ग्रेटर देन न्यू, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं. ओके, मतलब जो फ्रीक्वेंसी आप दे रहे हैं न्यू वाला, वो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो फिर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना ही नहीं होगा. और अगर उससे ज्यादा है तो कुछ एनर्जी बच जाएगा. सो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस जो बचा हुआ एनर्जी है वो कैसे जाएगा? जो बचा हुआ एनर्जी है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू व्हाट, mv स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी होता है ना, वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा. वन मिनट बेटा, बात समझ में आ रही है? फाइन. Mass of electron into v square. This was all about photoelectric effect. Now let's see the dual behavior of electromagnetic radiation. देखिए ये चीज तो आपको समझ में आ गई है कि फिनोमेना जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर नॉट बी एबल, वी वर नॉट, साइंटिस्ट वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर. तो हमने ये कंक्लूड किया कि भाई पार्टिकल नेचर भी एग्जिस्ट करता है, एंड फाइनली हम वेव पार्टिकल डुअलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं. अच्छा, अब हुआ क्या कि जब वेव में पार्टिकल नेचर आ गया, तो फिर पार्टिकल में वेव नेचर भी आना चाहिए. नहीं, बात समझिए. अगर किसी वेव में पार्टिकल नेचर है, हमने निकाल लिया, तो फिर पार्टिकल में वेव नेचर क्यों नहीं निकलेगा? निकलेगा, राइट. और ये कॉन्सेप्ट लेकर के आए डी ब्रॉगली. अभी आगे देखेंगे दैट सम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स में, बड़े पार्टिकल्स में क्यों नहीं होगा उसको भी मैं जस्टिफाई करूंगा. ओके, मतलब जब मैं दौड़ रहा हूं, मेरा वेट अप्रोक्सीमेटली 80 kg के आसपास है, अगर मैं दौड़ रहा हूं तो मींस एनी पार्टिकल विच इज इन मोशन और एनी बॉडी, एनी मास विच इज इन मोशन, दैट इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ वेव नेचर. ओके, तो जब मैं दौड़ रहा हूं उसमें वेव नेचर है, बट वो वेव नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमने पढ़ा है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं नेचर में, उसके कंपेरेबल नहीं है. ओके, क्योंकि मैं बहुत धीरे दौड़ता हूँ. अगर मेरी स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर हो जाए, मींस 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो मुझ में भी वेव नेचर आ जाएगा. ओके, या उसकी कंपेरेबल आ जाए तो भी वेव नेचर आ जाएगा. मेरी बात समझ में आ रही है? सो डोंट वरी अबाउट दिस. कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल. ये क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे, सिंपल, आसान से हैं ये क्वेश्चन. मैं बताता हूँ. कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, वन मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज दिस. तो E इज इक्वल टू एच न्यू. आप प्लैंक्स कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई करिए, और वन मोल है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू. ओके, सो वेरी सिंपल कैलकुलेशंस आर देयर. न्यूमेरिकल्स काफी इजी आते हैं इससे.
आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस जस्ट एक बार कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दिस. Yes. Now let's have a brief idea about the spectrum. Okay, because आगे आपको atoms के spectrum देखने हैं. So absorption spectra, emission spectra, इनका idea होना चाहिए आपको. सी जब व्हाइट लाइट होता है, अभी हम सिर्फ कलर्ड रेडिएशन का बात कर लेते हैं, उससे आपको आसानी से समझ में आएगा. सो क्लास 10th का प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा. व्हाइट लाइट आता था और वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाता था. स्क्रीन पे जो 7 कलर का पैटर्न आपको मिल रहा है, दिस पैटर्न इज नोन एज स्पेक्ट्रम. मतलब कभी भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में अरेंज कर दें, तो दैट अरेंजमेंट विल बी टर्म्ड एज स्पेक्ट्रम. ओके, एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स. Yeah, so this was about the spectrum and the lowest wavelength. Sorry, let's start with this point. The spectrum of white light that we can see ranges from violet to red. Okay, ये violet का frequency range है, ये red का frequency range है. Such spectrum is called continuous spectrum, क्योंकि वहां पर कोई भी लैगिंग नहीं है. आप जब देखते होंगे तो उनके बीच में गैप नहीं दिखता आपको, डार्क या लाइट बैंड नहीं दिखते आपको. आपको एक लगातार colored bands दिखते हैं, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. That is it. Okay. हाँ, थोड़ा सा continuous spectrum होने की वजह से merge हो रहा होता है violet और blue में, green, blue merge होता है green में, and so on and so forth. A similar spectrum is produced when rainbow, you must have seen rainbow on the sky. Remember that visible light is just a small portion. ये तो आपको पीछे याद है, मैंने स्पेक्ट्रम दिखाया था, उसका कितना स्मॉल फ्रैक्शन था आपका विजिबल लाइट. मतलब विजिबल लाइट जो हमें दिख रहा है वो है बहुत कम. एंड व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरैक्ट विद द मैटर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में अब्सॉर्ब एनर्जी एंड रीच टू हायर. होता क्या है, जब मैटर यानी एटम एंड मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट करते हैं रेडिएशन के साथ, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं. ओके, में एब्जॉर्ब एनर्जी, या सिंपल हम कह लें मॉलिक्यूल हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इमिशन नहीं होता है. आगे जाकर के आप लोग पढ़ेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह. सो प्लीज अभी मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा. दैट इज अ वेरी वास्ट पोर्शन ऑफ द केमिस्ट्री. आई जस्ट वांट टू से आपको एक आइडिया देना चाहूँ तो आप अगर हायर स्टडीज करोगे तो कम से कम आपको एक 1500 पेज के आसपास का बुक पढ़ना पड़ेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, राइट. So my purpose was not to make you afraid of this. I just want to tell you that जो आपको पढ़ना है वो बहुत कम है. For returning to their normal, more stable, lower frequency states, होता क्या है, जब मॉलिक्यूल हाई एनर्जी पे चला गया तो वहां से वापस तो आएगा. जब वापस आएगा तो वो एनर्जी इमिट करेगा. कितना इमिट करेगा, इस एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग ही रेडिएशन इमिट करेगा. ओके, और ये एनर्जी गैप हम E = h लगाएंगे और किस फ्रीक्वेंसी का लाइट इमिट होना चाहिए ये पता कर लेंगे, या फिर हमें फ्रीक्वेंसी अगर लाइट की पता चल जाए, हमने ऑब्जर्व कर लिया, तो हम यहाँ पर एनर्जी गैप का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. ओके, हायर एनर्जी, विद द हायर एनर्जी these are in unstable state. For returning to their normal state they will emit the energy and so on and so forth. तो जब ये जा रहे होते हैं, मान लीजिए मैं एक सैंपल है मेरे पास, मैंने लाइट उस पर डाला तो वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, बाकी हमें स्पेक्ट्रम उधर मिल जाएगा. दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. और अगर वो वापस हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आ रहे हैं, उस समय का रेडिएशन स्पेक्ट्रम हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम. वी विल डिस्कस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड इमिशन स्पेक्ट्रा इन डिटेल in next lecture. Okay, till then keep learning, keep watching, stay safe and stay healthy. Thank you.